Assalamu alaikum class. Today we will read page number 3 and 4 of unit Understanding Our Bodies. So take out your books and let's start reading. Bismillahirrahmanirrahim. Put the finger on the land which I am reading. Lungs. As you breathe, your chest moves in and out. Inside the chest there are two sponge-like organs on either side of the heart. They are called lungs. The lungs take in a gas from the air called oxygen. This oxygen is absorbed in the bloodstream. When you breathe in, your lungs fill with air and become larger. When you breathe out, your lungs become smaller as air is squeezed out of them. Listen class, lungs. Lungs means pepper. As you breathe, your chest moves in and out. Inside the chest, there are two sponge-like organs on either side of the heart. Chest means सीना. जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट अंदर और बाहर की तरफ मूव करता है. चेस्ट के अंदर दो स्पंज की तरह दिल के दोनों तरफ ऑर्गन्स होते हैं. They are called lungs. The lungs take in a gas from the air called oxygen. वो कहलाते हैं lungs. Lungs means फेफड़े. lungs के ज़रिए हम हवा से एक गैस लेते हैं जो क्या कहलाता है? Oxygen. This oxygen is absorbed into the blood stream. When you breathe in, your lungs fill with air and become larger. ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होते हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स हवा से भर जाते हैं और बड़े हो जाते हैं. When you breathe out, your lungs become smaller as air is squeezed out of them. जब हम बाहर की तरफ सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स छोटे हो जाते हैं जैसे कि हवा से उसे निचोड़ दिया गया हो. क्लास आप पिक्चर में देख सकते हैं दो स्पंज टाइप के ऑर्गन्स बने हुए जो क्या कहलाते हैं? लंग्स. जो आपके राइट हैंड साइड की तरफ है वो राइट लंग है और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है वो लेफ्ट लंग है. और वी ब्रीथ थ्रू आवर लंग्स. हम सांस अपने लंग्स के ज़रिए से लेते हैं. क्लास नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए. हार्ट. The heart is a pump that is always working. It's made of strong muscle and is about the size of your fist. As it beats, it pumps blood to all the different parts of the body. Next paragraph. In this way, oxygen, which has been absorbed by the blood, is carried to all the millions of cells in the body. The body cells need oxygen to stay alive. Heart. Heart means dil. The heart is a pump that is always working. It is made of strong muscle and is about the size of your fist. दिल एक पंप है जो हमेशा काम कर रहा है और हम जब तक जिंदा हैं ये काम करता रहेगा. ये मजबूत मसल्स पट्टों से बना हुआ है. ये हमारी मुट्ठी के साइज़ के बराबर होता है. फिस्ट मीन्स मुट्ठी. As it beats, it pumps blood to all the different parts of the body. जैसे ही ये धड़कता है तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को
कम करता है। In this way, oxygen which has been absorbed by the blood is carried to all the millions of cells in the body. इसी तरह ऑक्सीजन जो खून से जब्त किया होता है जिस्म के तमाम मिलियन सेल्स तक मुंतकिल कर दिया जाता है। द बॉडी सेल्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। हमारे जिस्म की जो सेल्स हैं उन्हें ज़िंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्लास पिक्चर देके ऐसा होता है हमारा हार्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए। Teeth. Before food can be used by the body, it must be broken down into small pieces. This breakdown begins in your mouth when you chew food. This is done by your teeth, your jaws, and the muscles that move the jaw. A tooth has two main parts: the crown, which is that part which can be seen sticking out from the gum, and the root, which holds the tooth firmly in its socket in the jawbone. The crown is covered by a non-living thing substance called enamel, which is the hardest substance in the body. It protects the tooth from wearing out. Listen class. Before food can be used by the body, it must be broken down into small pieces. This breakdown begins in your mouth when you chew food. जो फूड हम खाते हैं इससे पहले कि वो हमारी बॉडी इस्तेमाल करे, इसको स्मॉल पीसेस में तोड़ना पड़ता है और ये तोड़ने का अमल हमारे मुंह से शुरू होता है जब हम खाना चबाते हैं। च्यू मीन्स चबाना। दिस इज़ डन बाय योर टीथ, योर जॉस एंड द मसल्स दैट मूव द जॉस। ये चबाने का काम हमारे टीथ, हमारे जॉस और हमारे जॉस के मसल्स जो इनको मूव करते हैं के ज़रिए मुकम्मल होता है। अ टूथ हैज़ टू मेन पार्ट्स: द क्राउन, विच इज़ दैट पार्ट which can be seen sticking out from the gum. हमारे टूथ मीन्स दांत और बहुत सारे दांत को बोलते हैं टीथ। हमारे टूथ के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला क्राउन, जो वो पार्ट होता है जो देखा जा सकता है हमारे मसूड़े से चिपका हुआ होता है। एंड द रूट विच होल्ड्स द टूथ firmly in its socket in the jaw bone. और दूसरा रूट जिसने होल्ड किया होता है मजबूती से अपने सॉकेट के अंदर हमारे दांत को। द क्राउन इज कवर्ड बाय नॉन लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल, विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। क्राउन ढका हुआ होता है नॉन लिविंग सब्सटेंस से, जो क्या कहलाता है? इनेमल, जो सबसे सख्त हिस्सा होता है हमारी बॉडी के अंदर। इट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वेयरिंग आउट। ये हमारे दांत को महफूज रखता है, गिरने से बचाता है। क्लास पिक्चर देखें, ये हमारा इंसाइजर टूथ है जो आप बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। इंसाइजर क्या होता है? जो हिस्सा हमारे गम के अंदर होता है वो रूट कहलाता है, उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है वो क्राउन कहलाता है और पूरा टूथ इंसाइजर कहलाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए। There are 4 types of teeth in the human jaw. Incisors are shaped like chisels so that they can cut cleanly into the food. Canines are more pointed. Humans use them for biting, but some animals, like dogs, have long canine teeth, which they use for catching prey and tearing flesh. Premolars and molars have flat crowns which, when moved across each other, chew and grind the food into pulp. Listen class. There are 4 types of teeth in the human jaw. हमारे जॉ के अंदर 4 किस्म के दांत होते हैं। पहला है इंसाइजर। Incisors are shaped like chisels so that they can cut cleanly into the food. इंसाइजर जो होते हैं वो शेप की तरह से चिजल मतलब छत की तरह शेप बनी होती है और वो क्या करती है? फूड को सफाई के साथ काट देती है। कैनाइंस
कैनाइन्स आर मोर पॉइंटेड, ये बहुत नोकदार होते हैं। ह्यूमन यूज देम फॉर बाइटिंग, इंसान इन्हें काटने के लिए, कोई चीज़ काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट सम एनिमल्स लाइक डॉग्स हैव लॉन्ग कैनाइन टीथ विच दे यूज फॉर कैचिंग प्रे एंड टेयरिंग फ्लैश। कुछ जानवर जैसे कि डॉग, कुत्ता, उनके बहुत लंबे कैनाइन होते हैं, वो दांत होते हैं, वो उन्हें इस्तेमाल करते हैं किसी पर हमला करने के लिए या गोश्त छीनने के लिए। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स have flat crowns which when moved across each other chew and grind the food into pulp. Premolars और molars यानी दार क्या होते हैं? फ्लैट क्रॉन्स की तरह होते हैं which when moved across each other, वो तब मूव करते हैं जब chew and grind the food into pulp, जब हम ग़िज़ा को मतलब कि chew चबाते हैं या ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, किसके अंदर? मगज़ के अंदर। पिक्चर क्लास पिक्चर देखें, ये देखें, जो हमारे आगे की तरफ दांत होते हैं वो इंसाइजर कहलाते हैं, और जो दांतों के ऊपर वाला गोश्त होते हैं वो क्या कहते हैं? गम। फिर हमारे माउथ में जो सबसे आखिरी दांत होते हैं जिसे हम डार कहते हैं, वो मोलर और प्री मोलर कहलाते हैं। जो दांत नोकदार होते हैं वो कैनाइन कहलाता है। थैंक यू क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर को आगे रीड करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।